first of all, I'll congratulate you that you are doing a hurricane task, which is now I am just counting after your speech that it's only 45 years and going on. So, what basically just I want to know, is there any deadline for that? Is there any deadline? And why don't we start phasing it out? If it's a project of, just for an example, if it's a project of 10 acres, then if you had 2 acres very clear, which no disputes, with some specific guideline or with a clear guideline, then why don't we start developing that 2 acres? And just a question, just a query. No, this is a very, actually I could not address all this in my short speech. Very important question has been raised. Thank you very much. 2 queries have been raised. One is about why don't you phase it out? And second was about what is the deadline? In fact, first I'll address the first question. See, there are 2 ways, 2 things happen every day in government. One is a scheme and other is a project. Scheme has no deadline, right? Scheme goes on forever, right? There is no deadline. But project by definition has a deadline. So the deadline we have given for this rehabilitation of all the project of the Dharavikars in Mumbai is 7 years from the date of the commencement certificate, first commencement certificate. So whenever we are going to give, it will happen sooner than later. From there, the D-Day starts. Within 7 years, the project has to be completed. So many people will be laughing also, perhaps, how can you do in 7 years, right? Because SRA officers are here, they understand, and all of you also know that a SRA project, a small project also, they take about 7 to 8 years, 10 years, 15 years. In fact, last year or this year, I think early this year, government has cancelled about 500 projects. 500 projects have been cancelled because for 15 years nothing has happened. And there are small projects of 300 families, 400 families. Here you have lakhs of people. So 7 years is very challenging, to say the least. But the point is, see, I cannot say it will be done in 4 years because it is unrealistic. It cannot be done. At the same time, we can't say I will do it after 20 years because there is a famous economist, Nobel laureate, John Maynard Keynes. He said, in the long run, we are all dead. So if you tell me that after 40 years you are going to get, we are all dead. That's a famous saying, in fact. So he wrote a book called General Theory of Employment, Interest and Money, for which he got a Nobel Prize way back in the 1940s and 50s. So the deadline is 7 years. And secondly, about phasing, in fact, it's a very good suggestion. And we are in fact going along the same lines. We are going to phase it out. We are going to phase it out. Will not be all entire Dharavi will not be developed in one go. It is impossible. So we are phasing it out. But the third point is also there in what you said. Why don't you take up 2 acres open land which is free and start there? In fact, if you go to Dharavi, you will not get even 100 square meters of open land. 100 square meters. Because the density of Dharavi is the highest in the world. We have not heard where 225,000 per square kilometer. Per square kilometer. So this is the highest density. So there is no land. So what we did, this is a very important point raised. Why don't we, if you want to start in phases, you require some open space. So that we found out. We found out there is a land abutting between Dadar and Dharavi, abutting Dharavi, there is a land which we identified, which we have purchased from Railways, Government of India. We did an MOU long back, and now agreement is also signed. That is about 45 acres of land belongs to them, 45. So out of that, in fact, we got about 27 to 28 acres in our possession recently. So that is where the phase 1 of the project will start. So the phasing is important, the question you raised. Open space, some important we raised. It didn't exist, so we had to create one. So there we also maintained an agreement that we pay them so much money and all that. So that money will also paid by the SPV to Rail, reimbursed to us. In fact, so it will not be the government which is purchasing. We are purchasing, of course. We paid them 1,000 crores, but the entire money will be given back to them. Out of that, we already got some 500 crores, by the way, from the SPV developer.
And third is, of course, the phasing part. So all the three are very relevant points, and this is how we are proceeding. Thank you very much. But I just want to ask you, I have just put a suggestion for that, for this one. As you told, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी है कि वहाँ उतनी भी जगह नहीं है. Why I had put this point कि phases में हम चलें, जैसा कि आपने बताया, अब एक 45 एकर्स लैंड जो भी आप बता रहे हैं, वो कहीं आप देख रहे हैं. ये मेरा सुझाव इसलिए भी था, आजकल आपने देखा होगा, वैसे भी आज ये भी शो है, तो हम लोग पहले एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिर टीज़र दिखाते हैं, फिर ट्रेलर दिखाते हैं, और फिर पिक्चर दिखाते हैं. प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि धारावी में ये प्रॉब्लम हो रही है कि धारावी एट द रेट 45 ईयर्स उस पर हार ही चढ़ा हुआ है. वो आगे उसका टीज़र ट्रेलर नहीं दिखा अभी तक. तो आपको नहीं लगता कि ये जो मॉडल आप डेवलप करेंगे, और जैसा कि आपने, मुझे लगता है कि आज बहुत सारे इश्यूज़ को सर ने बहुत क्लैरिटी से हमें समझाया कि जो ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है उसे मिलेगा, और जो उसके ऊपर रह रहा है मेंजनाइन पे या फर्स्ट फ्लोर पर, उसे नहीं मिलेगा. उनको रेंटल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगा, वो मिलेगा. बट एट गवर्नमेंट, यानी सर यू हैड अ विन विन सिचुएशन इन बोथ द थिंग्स, कि व्हेन यू विल complete this model, I think model flat or model scheme there in 45 acres or 26 acres, what it can be. तो शायद आपके पास एक शोकेसिंग ऑफ धारावी रीडेवलपमेंट का एक मॉडल रेडी हो जाएगा. और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन वो मॉडल रेडी हो जाएगा, उस दिन शायद 90% ऑफ धारावीकर जो भी रीजन से गुमराह होते हैं, जो भी रीजन से वो प्रोजेक्ट को 45 साल और ना लगें, इसके लिए वो, अगर आपने वो धारावी का अगर मॉडल प्रोजेक्ट बनाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक जो 7 साल की सीमा आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि 3.5 साल में भी बन सकता है. तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ करने से इसमें बहुत लाभ होगा? तिवारी जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इसके बारे में मैं ये बता दूं कि जल्द से जल्द कई महीनों में हम लोग एक मॉडल फ्लैट भी बना रहे हैं, हम लोग बनाएंगे और उनको पब्लिक के लिए दिखाएंगे, और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. और दूसरा और एक चीज़ है, मैं बोलना भूल गया था, बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है कि काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा इमीडिएट याद नहीं आती है. सो दैट इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, कि देयर इज़ अ मास्टर प्लान बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर धारावी. So they have submitted for master plan. At the same time उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है, उसका इटरेशन चल रहा है. वो होते ही हम लोग मास्टर प्लान पब्लिक को भी पब्लिश करेंगे, एक्चुअली कैसा डेवलप होगा वगैरह पब्लिक डोमेन में डालेंगे. लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उधर के फैक्ट्रीज और कमर्शियल यूनिट्स को डिस्टर्बेंस काफ़ी होगी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. किसी का छोटे छोटे दुकानदार है, जिसका उडुपी रेस्टोरेंट्स है, उडुपी का पूरा मुंबई को नाश्ता खिलाता है, उधर धारावी से जाता है पूरा. और छोटे छोटे कपड़ों का दुकान है, प्लास्टिक का दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, उनको डिस्टर्बेंस तो काफ़ी होगी. इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे हिसाब से इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम होगा, ये स्लम प्रोजेक्ट को वाइटल पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट करके डिक्लेयर किया गया. उन्होंने ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके लिए किया, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि सभी कमर्शियल यूनिट्स, एलिजिबल कमर्शियल यूनिट जो है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है धारावी में, वो वापस आने के बाद कंस्ट्रक्शन वो जो होने के बाद ऑक्यूपाई करेंगे नया स्ट्रक्चर्स. वहाँ से उसी डेट से 5 साल तक उनको स्टेट जीएसटी का रीइंबर्समेंट मिलेगा हर साल. ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है, गवर्नमेंट का डिसीजन है. जिसी को फॉर एग्जाम्पल उनका धंधा भी कैसा है, वो टर्नओवर बहुत छोटे से चलते हैं, वो 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए, किसी ने 50,000 का स्टेट जीएसटी उन्होंने भर दिया. 50,000 का भी एक्चुअली मार्जिन बहुत होता है उनके लिए. सो 50,000 उनको रीइंबर्समेंट, जैसे ही पेमेंट करेंगे उनको रीइंबर्समेंट करेंगे. बट ये पूछ सकती है, आपको इतना क्यों करते हो आप लोग, पहले ही एग्जम्पशन क्यों नहीं दे सकते पेमेंट करने का, बिकॉज जीएसटी इज ए सेंट्रल एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है. सो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड इट. सो इसीलिए हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमको सुझाव दिया कि रीइंबर्समेंट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली रीइंबर्समेंट होगी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोसिस्टम ऑफ धारावी एज ए सिटी. जी.
फॉर दैट ओनली मुझे लगता है मैंने वो एक आपको पॉइंट रेज करके पूछा कि मान लीजिए जब भी आप वो 26 एकड़ का एक जो मॉडल शोकेसिंग, अपन उसको एक ऐसा नाम देते हैं कि धारावी शोकेसिंग, ये जो आप बनाने वाले हैं या बनना चाहिए, तो यही जो चीज़ अब आपने बताई कि समझ लीजिए वहाँ पे अगर 100 यूनिट्स हैं या इडली वाला है या उड़ीपी वाला, वो जो भी है, तो इन लोगों को हमने यदि वहाँ ले आए, यानी जो आपको नई जगह मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नीचे से खोदने के चक्कर में हैं, ज़मीन को हम नीचे से खोदने के चक्कर में हैं, हमारी प्रॉब्लम छत पर रखी हुई है। तो ये जो छत वाले, अगर छत वालों को यदि छत दे दी जाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम छत वालों का है, जमीन वाले तो जमीन पे हैं ही, तो ये जो छत वालों को अगर हम छत दे दें, और ये जो लोग जो समझ लीजिए वहाँ का उड़ीपी रेस्टोरेंट वाला का, उसको शायद हाइजीन का प्रॉब्लम होता होगा, उसको पानी नहीं मिलता होगा, उसको उसका इकोसिस्टम नहीं बनता होगा, तो हम क्यों ना वो जो ये जो लोग हैं जो कमाई कर रहे हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि मेरा घर भी चला जाएगा, मेरी दुकान भी चली जाएगी, मेरा कमाई भी चला जाएगा, जैसे आपने ये जीएसटी वाला रिवाइवल या जीएसटी वाली छूट जो बात की, तो हम इसको कंप्लीट करके क्यों ना यानी वो लेके इनको शिफ्ट ही कर दे वहाँ पर, जिससे आपको वहाँ 100% सरदर्द में कुछ 30% कम हो जाए। तो ऐसा कुछ आप और सोचेंगे क्या इसमें? हमारा सोच ऐसा है इसके बारे में, ये अबाउट कि जो ट्रांजिट के बात हो रही है, ऐसा मैं समझता हूँ क्वेश्चन, कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जनरली हम लोग क्या करते हैं, इधर रेंट देते हैं डिमोलिशन के बाद 3 साल 4 साल ऐसा, या उनको ट्रांजिट में डालते हैं। बट धारावी में हमारा सोच थोड़ा सा अलग है कि डायरेक्टली लोगों को फाइनल टेनेमेंट में शिफ्ट करने का। ट्रांजिट में डाल दिया तो परमानेंट ट्रांजिट कैंपिंग बनता है, इतना परमानेंट हो गया कि गवर्नमेंट को डीसी रेगुलेशन में पीटीसी करके नया रेगुलेशन ही करना पड़ा अभी, बराबर है ना, देर से पीटीसी करके नया रेगुलेशन भी आ गया, 33-14 ईयर कुछ तो है, वो मैं भूल गया अभी। एनीवे, सो ऐसा वो चल रहा है। बट हियर वी डोंट वांट टू डू एनी ट्रांजिट, बिकॉज इतना लोगों, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाख्स ऑफ पीपल ट्रांजिट में डालना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो उसमें एक तो गाँव सरकार पैसा भी, खर्चा भी बहुत होता है, मोर देन द इम्पॉर्टेंट इज उनका लाइवलीहुड और लाइव्स का तकलीफ होते है सबको, बिकॉज 3 साल के बाद 4 साल के बाद उनको बोलेंगे कि आप उधर से इधर भी शिफ्ट हो जाओ, वो भी प्रॉब्लम है। और नहीं करके फिर ट्रांजिट में ही डाल दिया परमानेंट, और भी डेंजरस है। सो दोनों तरफ से ये अच्छा नहीं है ट्रांजिट, इसीलिए हमने उधर से उधर करने का हम लोग कोशिश करेंगे, परमानेंट के परमानेंट। जी, मध्यंतरी एक धारावीच्या या आपल्या प्रोजेक्ट संदर्भात एक थोडी कॉन्ट्रोवर्शियल असा प्रकार झाला होता की एक आपण एक डेट अनाऊन्स केली की भूमिपूजन होणार आहे, ती नंतर कॅन्सल केली कारण लोकांचा विरोध झाला, पण ते आपण नंतर करून घेतलं भूमिपूजन। तर ते काय होतं नेमकं आणि तो कुठला या प्रोजेक्टचा कुठला भाग होता? नाही, हे भूमिपूजन DRPनी केलेलं नाही, SPVनी केलेलं होतं। बट हा जो भूमिपूजन होता त्यांचा सबकॉन्ट्रॅक्टर जो आहे, त्यांनी स्वतःचं इन्स्ट्रुमेंटचं पूजा करून घेतलेली आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं। आणि हा रेल्वे लँडवरती होता, धारावी प्रॉपरमध्ये नव्हतं ती, दॅट इज ओनली अबाउट द रेल्वे लँड। रेल्वे लँड में क्या कर रहे हैं हम लोग, ॲक्च्युली रेल्वेच्या संदर्भात, लँड संदर्भात आमचा करार असा झाला होता कि एक उनको हम लोग नंबर 1 वी आर गोइंग टू रिकन्स्ट्रक्ट रेलवे फैसिलिटीज़, उधर काफ़ी क्वार्टर्स भी है, रेलवे क्वार्टर्स। सो उसका कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे हम लोग, उनको करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी लोग उधर रहते हैं, वो भले वो डायलापिडेटेड है, उनको करना पड़ेगा, दैट वो कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए तो शुरुआत अभी उधर से शुरू होगी। फेज़ 1 में भी पहले रेलवे का फैसिलिटीज़ का उसके बारे में था वो। और सेकेंड इज़ रिगार्डिंग दिस, उसके बाद फिर उनको उधर भी एक स्लम है रेलवे लैंड में, एक्चुअली अराउंड 3000 या 4000 उधर टेनेमेंट्स हैं, उनको भी रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। थर्ड प्लस उसको पैसा भी देना पड़ेगा, ऐसा था। जी, थैंक यू। एक्चुअल प्रोजेक्ट वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग इन ए फ्यू मंथ्स ओनली, इनफैक्ट 4-5 महीने में हो सकता है। ये अच्छी बात है कि सरकार धारावी को 30 साल के बाद इसको डेवलप करने जा रही है। लेकिन ये जो विवाद चल रहा है कि धारावी के लोगों को मुलुंड या कांजूर मार्ग के 60 लाइन पर शिफ्ट किया जाएगा, इसकी सच्चाई क्या है? कि कुछ लोगों की डिमांड है कि धारावी के लोगों को धारावी में मिलना चाहिए, और जो खबरें चल रही है कि उनको मुलुंड या कांजूर मार्ग में शिफ्ट किया जाएगा, ये थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है इसमें। एक्चुअली इसके बारे में मैंने बताया था डिटेल में, बट और एक बार डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। और एक बार
उसमें धारावी में जो लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबल कौन, 2000 तक जो लोग थे वो सब, प्लस 2011 तक जो थे वो सब, प्लस जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसी में से, वो सब लोगों को धारावी के अंदर ही दिया जाएगा, धारावी के अंदर ही दिया जाएगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। नंबर 2, जो दुकानें हैं, जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, जो सब एलिजिबल जो है इसी नाम के हिसाब से, उनको धारावी के अंदर ही दिया जाएगा। बट नॉन एलिजिबल जो लोग हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तो फिलहाल SRA में आप में जो बैठे हुए हैं इधर सामने, उनके उसमें SRA के डेवलपर भी होंगे और SRA के ऑफिसर्स भी सामने मौजूद हैं। हम लोग SRA में क्या करते हैं, टिपिकली जो अलाउड, जो एलिजिबल हैं उनको रास्ते में फेंक देते हैं, उनको कुछ नहीं देते अभी। करेक्ट है ना? SRA ऑफिसर भी सामने बैठे हैं, वो भी हाँ बोल रहे हैं। दैट इज द रूल। वो रूल ऐसा है कि इसी हिसाब से करो। और सेकेंडली, फर्स्ट फ्लोर, मेजनाइन फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर है तो उनको मत दो, ऐसा रूल ही है। सो रूल के हिसाब से ही जाएंगे गवर्नमेंट का ऑफिसर, SRA हो, मैं हूँ। सो एज फार एज आवर प्रोजेक्ट ऑल्सो एज पर GR ही हम लोग जा रहे हैं। GR क्या बोलता है, जो नॉन एलिजिबल हैं उनको घर देने का है, लेकिन धारावी के अंदर नहीं, विद इन मुंबई, विद इन 10 किलोमीटर रेडियस पॉसिबल है तो कर लो। और वो भी प्रोक्योरमेंट उसी कंपनी को करने का है। और एज पर देयर लैंड डिस्पोजल रूल्स, फॉर एग्जांपल दे वांट टू गेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, उनका लैंड डिस्पोजल जो भी रूल्स है उसके हिसाब से लाना। और वो रूल ज़मीन वो लाके DRP को देने का है गवर्नमेंट को, अलॉन्ग विद कॉस्ट, अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्टेड टेनेमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शन टेनेमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को ट्रांसफ़र करने का। ऐसा है। अभी कैसा रहता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड निम्बी फैक्टर, नॉट इन माई बैकयार्ड, वो भी रहता है। और उसमें ये भी है, लेट अस डिस्कस ओपनली व्हाट हैपेंस। मेनी टाइम्स इट कैन बी टेक पॉलिटिकल टर्न ऑल्सो, बिकॉज मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर के लोग आ रहे हैं तो आई विल ऑल्सो बी लिटिल मीन्स बैलेंस ऑफ पावर में शिफ्ट। एंड ऑल्सो देयर कैन बी अदर रीजन्स ऑल्सो, नॉन पॉलिटिकल रीजन्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कि उधर ज़्यादा डेंसिटी बढ़ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोझा आ सकता है। बट ऑलरेडी ये पीपल मुंबई के लोग ही है, बाहर से नहीं ला रहे हम लोग, है कि नहीं? सो ये लोग धारावी के अंदर है तो साउथ मुंबई के लोग ही है ना, मुंबई के सिटी के अंदर ही है। सो उनको किधर किधर तो लेना ही पड़ेगा। सो किधर ले, इट कैन नॉट बी मुलुंड, ठीक है, फिर दूसरा जगह से लाना पड़ेगा। इट इज़ अप टू द SPV, देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट लैंड इज प्रोक्योर्ड एट देयर कॉस्ट एंड गिव इट टू DRP along with constructed tenements. So it can be there. Actually अभी तक as I speak till today we did not get a single inch of land अभी तक। हम जो मीडिया में चलता है कभी कभी कि इतना एकड़ मिल गया वगैरह, मैं ऑफिशियली बता सकता हूँ। और कुर्ला का डेयरी का लैंड मिल गई है, बट अभी तक पोसेशन नहीं मिला उनका। उसमें 57 करोड़ का पेमेंट भी हो गई गवर्नमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, अभी तक नहीं मिली। सो कहाँ से कहाँ ना किधर तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फ्रॉम वेयर, एज आई सेड। बट देयर इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज नॉट द परफेक्ट थिंग वी हैव डन। आई हैव सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो, ये परफेक्ट नहीं है सिस्टम। इसको भी और भी सुझाव है तो हम लोग लेंगे और उसमें ट्राई टू इम्प्लीमेंट एज पर द GR। जैसे आपने कहा कि एक शहर के अंदर एक शहर, सिटी इन द सिटी, ये धारावी को लेकर जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये धारावी को लेकर जो चर्चाएं ज़्यादा हैं, ये धारावी को लेकर मुझे लगता है धारावी दुनिया में जिस दिन भी कंप्लीट होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे भी भारत में और दुनिया में एक कहावत है कि श्रीनिवास के भरोसे छोड़ो, वो सब ठीक कर देंगे। तो इट्स विथ श्रीनिवास नाउ कि ही विल कंप्लीट इट। एंड मुझे लगता है कि भले ही उसका मॉडल जो फेज़ है, जो पहला फेज़ है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वो आपके नेतृत्व में ही पूरा हो, कंप्लीट प्रोजेक्ट पूरा हो, क्योंकि फिर मैं आपके लिए अच्छा नहीं सोचूंगा अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो मॉडल प्रोजेक्ट है, जो मॉडल है जो आप बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है वो कम से कम आपके नेतृत्व में पूरा हो और धारावी के लोगों को उनके मन से, उनके दिल से जितने वहम और जितना डर और जितनी आशंकाएं हैं, उसे दूर करने में नवभारत नवराष्ट्र और धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी हम सब मिलकर उसे पूरा कर सकें और मुंबई को एक नई मिनी मुंबई दे सके। इसी उद्देश्य से सर ये आपका कीनोट स्पीकर, एक कीनोट ये रखा हुआ था एड्रेस। और थैंक यू वेरी मच नवभारत नवराष्ट्र के बिहार।